हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पार्ट 3 की वीडियो यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस 2021 को ही कंटिन्यू करेंगे। आई वुड रिकमेंड यू कि अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो नहीं देखी है अभी तक, तो आप प्लीज़ उसको एक बार चेकआउट कर लें और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 61. Which among the following statements are false? Question from artificial intelligence, and let's solve this. Statement A बोल रही है greedy best first search is not optimal but is often efficient. So it is saying a false statement. This is true क्योंकि greedy best first search is not optimal. We all know. ठीक है, तो ये true है, but we have to find out the false statement. Statement number B. A star is complete and optimal provided HN is admissible or consistent. This one is also true. ये भी सही है. This one is complete. Recursive best first search is efficient in terms of time complexity but poor in terms of space complexity. This statement is false, right? And Hn is equal to 0 is an admissible heuristic for the 8 puzzle. This one is true. So we see option number D is correct for this question. Let's move to next question. Question number 62 from Theory of Computation. We are given three languages, that is L1, L2 and L3. L1 is saying order 0 raised to the power n, 1 raised to the power n, 0 raised to the power m, where we check that n is greater than equal to 1 and m is greater than equal to 1. तो ये क्या है हमारे पास, ये एक context free language है, we all know context free. This one is again same context free. Why? क्योंकि एक सिंगल स्टैक ही sufficient है इसको प्रूव करने के लिए कि ये लैंग्वेज context free है. कैसे करेंगे? This is 0 power n is an independent term. We couldn't create any comparison here, but यहाँ पे हमने देखा कि जितने number of m मैंने डाले उतने ही और number of o मुझे चाहिए. तो हम कैसे डालेंगे? पहले जैसे 1 है तो लेट अस सपोज कि 1 2, तो ऑटोमेटिकली 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 स्क्वायर. ठीक है, 1 आया तो जैसे ही 0 आया तो मैंने इसको क्या कर देना है? पॉप. ठीक है, तो उतना 0, फिर से मैंने इसको पॉप किया. ठीक है, तो मैच हो जाएगा या दिस आर इक्वल. ठीक है, तो सिंगल स्टैक इज सफिशिएंट. अब यहाँ पे देखो एक सिंगल स्टैक से काम नहीं बनेगा. क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 टाइम्स n की पावर है, राइट? तो ये कंटेक्स्ट सेंसिटिव के अंदर आएगा. चलो ये क्लियर है. अब हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट. तो बोल रहे हैं L3 is equal to L1 intersection L2. Okay, B is saying that L1 and L2 are context free language but L3 is not the context free language. Yes, this one is true. B तो आना ही चाहिए and B is only coming in this option. Okay, L1 and L2 are not context free language but L3 is a context free language. This is opposite one, right? And L1 is a subset of L3. We can't say exactly since. So we see that option number 4, that is correct for question number 62. Question number 63 again from TSU. Question number 63 again from TOC. What is the minimum number of states required for the finite automaton equivalent to the transition diagram given below? तो हमने क्या फाइंड करना है कि मेरे को ये वाला जो डायग्राम है इसके मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स को निकालना है ताकि सही से सेम वही ट्रांजैक्शन परफॉर्म की जा सके बट विद द मिनिमम स्टेट. देखो जब हमें मिनिमम स्टेट्स की बात हो रही है, ठीक है, तो हम ना डेड स्टेट्स को एलिमिनेट करते हैं, राइट? अब यहाँ पे देखो यहाँ तक ये जो डी वाला है यहाँ तक पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं है, तो बस ये यहाँ पे जा रही है तो ये हम एलिमिनेट कर देंगे. ओके, सिमिलरली जो जी है वो फाइनल स्टेट पर जा ही नहीं रही है तो इसको भी आप क्या कर दोगे? एलिमिनेट कर दोगे. नाउ सी हियर 1 0, it's again going, this will be fine. Then 1 f, then this one is deleted and it is coming to 1, then this h and h is going to 1. मतलब ये 1 ही प्रोड्यूस कर रहा है. और अगर हम ध्यान से देखें, देखो इट इज creating a self loop pair of 1, so we can say that h can be discarded here, है ना? h को हम यहाँ से
डिस्कार्ड कर सकते हैं क्योंकि 1 ये खुद प्रोड्यूस कर रहा है, राइट? तो व्हाट वी डू, 1 this 0 and then any number of time 1 from here. So we check that कि 5 number of state से ये वाला finite automation क्या हो सकता है हमारा, it can be minimized here, right? So this is the answer here. 5. Question number 64. From data structure, a double-ended queue, that is DQ, supports adding and removing item from both the ends of the queue. The operations supported by DQ are add front. This means adding item to the front of the queue, right? DQ, ठीक है, both the end से यहाँ से भी हम insertion कर सकते हैं, deletion कर सकते हैं. Similarly from this end we can do insertion and deletion, right? Add front का मतलब क्या है कि front पे हमने एक item को add किया. Add rear का मतलब क्या है, item to the rear. Remove front, removing an item from the queue, and remove rear means removing item from the rear of the queue. You are given only stacks to implement this data structures. अब वो क्या बोल रहा है कि you have to implement this data structure with the help of stacks. ठीक है, stack की help से करना है. You can implement only push and pop operation. Obviously stack में push and pop ही होगा, right? What is the time complexity of performing the add front and add rear assuming m is the size of the stack? ठीक है, जो ये stack है इसका size कितना रहने वाला है, m, and n is the number of elements. और कितने elements इसमें आ सकते हैं, n elements. तो we have to find the time complexity here. देखो सबसे पहले add front, ठीक है, जब हमने कोई element को इसमें add करना है तो obviously what will do, हमें सिर्फ एक pop operation लगना है, sorry we have to perform only one push operation. ठीक है, just हमने यहाँ पे push किया, ठीक है, तो add front, right, 1 and add rear. जब rear पे हमने कुछ डालना है, मतलब end of the queue, right? तो what we do, we have to traverse all till the bottom, right? क्योंकि हमें यहाँ पे stacks की नीड पड़ेगी, ठीक है, जैसे कि मैंने push किया तो यहाँ पे मैंने pop किया तो ये इसके bottom में आया, ठीक है, तो इस तरह से हमें order of n operations will be required for the rear. A is the correct for question number 64. Question number 65. Read the following and answer the questions. Consider a machine with 16 GB main memory and 32 bits virtual space address. ठीक है, तो main virtual address हमारा 32 bits का है and main memory 16 GB की है. With the page size as 4 KB. Frame size and page size are the same for the given machine. If the process of size 34 KB is to be executed on this machine, ठीक है, अब एक प्रोसेस जिसका साइज कितना है हमारे पास 34 KB, उसको हमने एग्जीक्यूट करवाना है दिस मशीन के ऊपर, देन व्हाट विल बी द साइज ऑफ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन फॉर दिस प्रोसेस. तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का साइज कितना रहने वाला है इस प्रोसेस के अंदर. तो बेसिकली इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या है, फॉर एग्जांपल कि मैंने एक प्रोसेस का साइज फिक्स किया 4 KB, सॉरी जहाँ पे मुझे काम करना है, बट जो प्रोसेस है वो है 3 KB की, तो 1 KB is free and this is called as internal fragmentation. ठीक है, तो ये कंसेप्ट है कि जो स्पेस वेस्ट होगी विद इन द पर्टिकुलर एड्रेस स्पेस, राइट. चलो हम इसको करते हैं सॉल्व. अब यहाँ पे देखो हमारे पास डेटा गिवन है कि पेज साइज, ठीक है, पेज साइज कितना है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 4 KB, राइट. 4 KB हमारे पास क्या है, पेज का साइज है. अब हमारे गिवन है प्रोसेस साइज, प्रोसेस का साइज गिवन है हमें, दैट इज इक्वल टू 34 KB. 34 KB की प्रोसेस है. अब हमें क्या देखना है कि पेज साइज इज 4. देखो अब कितने पेजेस लगेंगे हमें वो चेक करना है, ठीक है. अगर मैं देखूं 8 4 द 32 है ना, 32, बट अभी मेरे पास 2 KB का बच रहा है, तो वो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक एक्स्ट्रा पेज चाहिए, है ना, एक एक्स्ट्रा पेज. और पेज का साइज कितना है 4 KB, ठीक है, एक पेज मुझे चाहिए एक्स्ट्रा, ठीक है. तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 34 KB की प्रोसेस तो आ गई, प्लस 2 KB का मेरे पास क्या आ गया, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. तो व्हाट शुड बी द आंसर, ऑप्शन नंबर
KB. ओके, 2 KB वेस्ट हो जाएगा लाइक दिस इज अ पेज साइज ऑफ 4 KB. ठीक है, तो 4 KB यहाँ पे आया, देन 4 KB दिस शुड बी टोटल 8. ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप, 4 8 12 16 like so up to 32 प्लस नेक्स्ट क्या हमारे पास आएगा 4. बट इसको 4 नहीं चाहिए, इसको 2 चाहिए. बट हमारा पेज साइज कितने का है, 4 KB का, इसलिए जो 2 KB है वो हमारा क्या बन जाएगा, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. ओके, आई होप इट इज क्लियर. इफ अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, आई विल सॉल्व योर क्वेरी डेफिनेटली. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66. रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चन. वही क्वेश्चन चल रहा है. ओके, कंसीडर अ मशीन विद 16 GB एंड दिस. अभी हमें क्या पता करना है, फाइंड द नंबर ऑफ पेजेस रिक्वायर्ड फॉर द गिवन वर्चुअल स्पेस एड्रेस. ये क्या है आपका एकदम सुपर इजी क्वेश्चन, जिसको हम बोलेंगे लड्डू क्वेश्चन. देखो 32 बिट या 32 बिट का हमारे पास वर्चुअल एड्रेस का स्पेस है. ये डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में. एक हमारे पास होता है पेज ऑफसेट, दिस इज पेज ऑफसेट, एंड दिस वन इज द नंबर ऑफ पेजेस. ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस. अब पेज साइज कहाँ से आएगा, 4 KB गिवन है. देखो 4 KB, 4 KB should be written as 4 dot KB को हम क्या लिखते हैं, 2 raised to the power 10, और 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 raised to the power 2 into 2 raised to the power 10. This is equal to 2 raised to the power 12. ठीक है, तो पेज ऑफसेट कितना है हमारे पास, 12. तो 32 में से 12 हमारे पास वैल्यू आ गई, तो रिमेनिंग कितनी रहेगी, 32 minus 12, that is equal to 20, right? तो यहाँ पे क्या है, 20. तो this is the number of pages. So 2 raised to the power 20 is the right answer. That is option number C. Let's move to the next question. Question number 67. Consider a machine with 16 GB. वही same process is going on. अभी हमें क्या पता करना है, number of bits reserved for the frame offset is. देखो फ्रेम ऑफसेट एंड ये गिवन बोल रहा है कि पेज साइज एंड फ्रेम साइज इज द सेम. तो हमने पीछे सॉल्व भी किया था, है ना. दिस इज आवर फिजिकल एड्रेस स्पेस. ओके, ये कितने का है, 16 GB. 16 GB इज रिटर्न एज 34 बिट्स, राइट. तो उसमें से 12 बिट्स हमारे कितने हैं, पेज और ऑफ फ्रेम ऑफसेट. दिस इज द सेम थिंग, है ना, पेज और फ्रेम ऑफसेट. तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 12. 12 is the right answer in this question. Okay, option number A. Let's move to the next question. Question number 68. Here same, what is the size of page table for handling the given virtual address space given that each page table entry is of 2 bytes. अब हमें क्या निकालना है, size of page table, right? Size of page table. Size of page table is equal to number of pages multiplied by each page table entry size entries. अब देखो नंबर ऑफ पेजेस कहाँ से निकलेंगे हमारे पास, हम करके भी आए हैं इन द लास्ट थिंग. देखो दिस इज, ठीक है, 32 बिट, जिसमें से हमारे पास आ रहा है 12 बिट का ये, और 20 बिट्स ऑफ फॉर द पेजेस. तो 2 raised to the power 20 क्योंकि नंबर ऑफ पेजेस है, एंड दिस इज द थिंग, मल्टीप्लाइड बाय, देखो यहाँ पे इसने गिवन है कि पेज टेबल का जो एंट्री साइज है दैट इज ऑफ 2 bytes, दैट इज 2. ठीक है, 2 raised to the power 20 could be written as KMB है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2MB. ठीक है, we know ना 2 raised to the power 20 is equal to 1MB. 1MB multiplied by 2, that is equal to 2MB. So 2MB is the right answer. Option number C. Question number 69. तो question number 69 from digital logic. इसमें क्या बोल रहा है हमें, output of any time
क्वेश्चन नंबर 69, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉम्बिनेशन सर्किट्स आर, तो ये कॉम्बिनेशन सर्किट्स की बात कर रहे हैं। आउटपुट एट एनी टाइम इज फंक्शन ऑफ इनपुट एट दैट टाइम, यानी आउटपुट है जो, ठीक है, वो उस फंक्शन की इनपुट रहेगी, ठीक है। ओके, देन बी क्या बोल रहा है, कंटेन द मेमोरी एलिमेंट्स। ओके, इसमें मेमोरी एलिमेंट नहीं रहता है, वाई, क्यों, क्योंकि क्योंकि सिक्वेंशियल में हमारे पास मेमोरी एलिमेंट की नीड होती है, बट कॉम्बिनेशन में हमारे पास मेमोरी एलिमेंट्स नहीं रहता। डू नॉट हैव फीडबैक पाथ्स, इसमें फीडबैक पाथ्स नहीं है, बिल्कुल फीडबैक हम नहीं लेते, करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। क्लॉक इज यूज टू ट्रिगर द सर्किट टू ऑब्टेन द आउटपुट्स, नो, इसमें क्लॉक हम यूज नहीं करते, क्लॉक आर यूज इन द सिक्वेंशियल सर्किट, जहाँ पे हमने प्रेजेंट एज वेल एज जो अपने पास प्रीवियस आउटपुट रहती है, हमने उसका रिकॉर्ड रखना होता है, राइट, बट इसके केस में ये नहीं होता। सो ए एंड सी बोथ आर करेक्ट, मतलब जो करेक्टरिस्टिक्स है कॉम्बिनेशन सर्किट्स की, ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 70, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, जो कॉम्प्लेक्स ज्यादा है हमने उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो फर्स्ट बोल रहा है एक मॉड्यूल, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट चैनल एंड डीएमए। देखो, प्रोसेसर एक बहुत बड़ी टर्म में यूज करते हैं हमारा, तो ऑब्वियसली इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दीज वन, ठीक है। तो बी होगा जो, वो क्या होगा हमारे पास इन द लास्ट, ठीक है। सो आंसर इज इन बिटवीन बी और सी, तो बी और सी के बीच में आंसर रहने वाला है। अब ए क्या बोल रहा है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल आएगा पहले या फिर इनपुट आउटपुट चैनल आना चाहिए, ठीक है। ओके, क्योंकि डी इज देयर, ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या आएगा हमारे पास सबसे पहले, मॉड्यूल। ओके, एक मॉड्यूल को डिजाइन करना इजी है एज कंपेयर टू डिजाइनिंग अ चैनल, तो बी इज द राइट आंसर। सबसे पहले हम मॉड्यूल की कॉम्प्लेक्सिटी कम है, देन वी हैव डीएमए आ जाएगा, then we have IO channel, and then in the last we have IO processor. So this is the correct order. Question number 71, which of the following statement is true? कौन सी statement true है? Control memory is part of the hardwired control unit. No, control memory hardwired के साथ नहीं है. Program control instruction are used to alter the sequence flow of the program. बिल्कुल ठीक है ना, हम देखेंगे कि सीक्वेंस है जो वो ऑल्टर हुआ है, उसके लिए हम प्रोग्राम पीसीआई, ठीक है, प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस यूज करते हैं। द रजिस्टर्ड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड फॉर एक्सेसिंग मेमोरी ऑपरेंड इज सिमिलर टू डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड। नो, ये तो बिल्कुल ही गलत है, डिस्प्लेसमेंट के साथ जैसा नहीं है। CPU utilization is not affected by the introduction of interrupts. This is also incorrect. यहाँ पे नोट आया बट इज अफेक्टेड बाय, ठीक है, तो करेक्ट क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 72 फ्रॉम कंप्यूटर नेटवर्क्स, एंड ये क्वेश्चन रेपिटेशन में आ रहा है, आई गेस ये 2 to 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, एंड दिस शुड बी कंसीडर्ड एज एन इजी क्वेश्चन। ओके, इन ईथरनेट व्हेन मैनचेस्टर encoding या coding is used, the bit rate is half the baud rate, ठीक है, option number A is correct. Let's move to the next question. Question number 73. Which of the following statements are true? Frequency division multiplexing techniques can be handled by digital circuits. Okay, no, it should not be handled by digital circuits, तो ये गलत है। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स कैन बी हैंडल्ड बाय एनालॉग सर्किट्स, ये गलत है। एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज, जो टाइम डिवीजन है ये हमारी डिजिटल रहती है और फ्रीक्वेंसी वाली एनालॉग रहती है, ठीक है, तो ये ऑपोजिट दे रखा है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट्स हो गई रॉन्ग। Statement number C, wavelength division multiplexing technique is used with optical fiber for connecting two signals, 100% correct. Frequency division multiplex technique can be applied when the bandwidth of a link is greater than the bandwidth of a signal to be transmitted. Yeah, that's true. ठीक है, तो C and D,
That is option number D is correct. Question number 74. The reverse Polish notation of the following infix expression, this one is. तो हमें क्या निकालना है? पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन निकालना है इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का. ठीक है, we have to solve this question. Let's solve this. Okay. We can solve this either by the brackets concept or by stack method. तो मैं यहाँ पे bracket वाला method use करूँगी. Okay, let me write this function quickly. B plus C multiplied by D plus E divided by F star G plus H. ओके, सबसे पहले यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स की प्रायोरिटी को देखना है, राइट. सी हियर, दिस वन इज द इनर मोस्ट ब्रैकेट, तो हम इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से हमें मिलेगा डी ई प्लस, और ये ब्रैकेट हो जाएगी क्लोज्ड, एंड वी कैन राइट इट एज सी प्लस here b plus and this curly bracket and here a star, and the second expression remains the same. This is f into g plus h into this. अभी next में we'll check here. ठीक है, देखो ये वाली टर्म को हम सॉल्व करते हैं, राइट. तो इसके लिए C, ठीक है, D E प्लस, और यहाँ पे ये जो मल्टीप्लाई है इट शुड कम हियर, राइट. और इन द नेक्स्ट एक्सप्रेशन विल सॉल्व दिस, तो यहाँ पे क्या आएगा B प्लस, राइट. तो B इज कमिंग देयर, मतलब प्लस यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में, एंड हियर वी हैव A. ठीक है, A है तो A को हम यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा स्टार. तो इस तरह से हमने ब्रैकेट वाइज प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व कर लिया. अब हम यहाँ पे आते हैं. ठीक है, दिस कम्स अंडर वन ब्रैकेट, स्टे हियर स्लैश. अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट की प्रायोरिटी है तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे. सो दिस इज जी एच प्लस. ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास क्या है एफ प्लस, तो एफ यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा यहाँ पे. ओके, ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये बचा है. अब व्हाट हैपेंस इज दिस इज द थिंग. ठीक है, हमने क्या करना है, इसको लास्ट में ले जाना है. अभी ए बी सी डी ई प्लस मल्टीप्लाई एफ जी एच प्लस मल्टीप्लाई एंड दिस डिवाइड कम्स हियर. ठीक है, तो ये प्रॉपर सॉल्व हो गया. इसको सुपर इजी तरीका पता है क्या इसको सॉल्व करने का, जितना बड़ा मर्जी एक्सप्रेशन हो. ठीक है, इट शुड बी कंसीडर्ड एट ए एंड दिस शुड बी कंसीडर्ड एज बी. ठीक है, तो मेरे पास अगर मैं इसको देखूं तो a डिवाइड बाय b, ये इनफिक्स एक्सप्रेशन है. अगर मुझे इसको कन्वर्ट करके पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में लेके आना है तो व्हाट आई डू, आई सिंपली राइट ए बी स्लैश. यहाँ पे भी ऐसे ही करना है. सेम आप कोई भी उठा के देख लो, दिस इज a प्लस बी, है ना. तो क्या बन जाएगा ए बी प्लस, तो सेम ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे आया ए बी प्लस. अब साथ में क्या था मल्टीप्लाई, तो अभी ये क्या है a multiply and this is what b, the whole term is considered to as b. सिंपल, इस वंडा से ना आपके क्वेश्चन क्विकली सॉल्व हो जाएंगे. ओके, स्टिल अगर कोई डाउट है और अगर ये वाला क्वेश्चन आप स्टैक की हेल्प से करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है, हम वैसे भी कर सकते हैं. ओके, let us go and solve the next question. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें. Question number 75, same from computer networks. Which of the following statement is false? बहुत सारे false statement आ रही हैं आज. Okay, तो A is packet switching can lead to reordering like circuit switching. No, ये statement हमारी क्या है, true. This statement is true, right? Statement number B,
Then it says packet switching leads to better utilization of bandwidth resources than circuit switching. Okay, ठीक है, true. And then we have packet switching result in less variation in delay than circuit switching. ये statement क्या है? False है. Packet switching sender and receiver can use any bitrate format or framing method unlike circuit switching. ये भी statement false है. I guess they both are false and ये question में marks to all हुए होंगे, right? Okay. This is a simple question based on computer networks concept. Okay. ये question तो बड़े easy रहते हैं ऐसे matching वाले. Okay, match list 1 with list 2. List 1 contains OSI के हमारे पास layers हैं and second पे क्या है उनकी properties हैं. Okay, let us match these. Data link layer. Data link layer क्या करती है? Piggy banking. Piggy bank क्या है कि जब हमारे पास simultaneous transfers message की एक साथ acknowledgement जा रही है. दिस इज कॉल्ड एज पिगीबैकिंग. ये यहाँ पे होता है. नेटवर्क लेयर क्या करेगी हमारी? प्रोड्यूस करेगी बिलियन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसपोर्ट लेयर वी नो एंड टू एंड. ठीक है, तो सी का क्या है? 1. देखो अगर हम करते हैं सी का 1 तो ये सिंपल डिस्कार्ड हो रहा है. ठीक है, ए का क्या है हमारे पास? 4. बी का क्या है हमारे पास? 3 एंड सी इज 1. डी का क्या बचा? 2. सेशन पे टोकन बनते हैं. सेशन लेयर will do token management. So option number 4 is correct. Question number 77. The octal equivalent of hexadecimal number is, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन आया. octal वैल्यू इज, देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास? d.c. ठीक है, d.c. d की टर्म क्या रहती है हमारे पास? जैसे a is 10, b 11, c 12 and d is 13 and c क्या है हमारे पास? 12, राइट. अब 13 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जस्ट 2 this one dot 12 is this. ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसको ऑक्टल में कन्वर्ट कर देना है. देखो ऑक्टल में हमारे पास 3 के पेयर बनते हैं. सिंपल, दिस इज योर 5 and this is same as 1. This is dot and this is our 6, right? 6 and 0 will remain 0. This is converted to octal number system. So it is matching with the 2, right? I hope ये concept सबको आता ही है ना? How do we convert hexadecimal to octal? hexa में हम 4 bits लेते हैं for a single digit and octal में we assume 3 bits. ठीक है, 3 bits. अगर कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताना. Okay, let's move to the next question. That is question number 78 from computer networks. Okay, the address of class B host is to be split into subnets with 6-bit subnet number. What is the maximum number of subnets and the maximum number of hosts in each subset? Okay, class B में we all know है ना? Let me draw first. So class B is of, ठीक है, this is host net ID and this is host ID. ठीक है, so इसने बोला कि जो हमारे पास 6 बिट का सबनेट नंबर है, 6 बिट है to 2 raised to the power 6, that is equal to 64. 64 minus 2 सबनेट माइनस करते होते हैं हम, तो टोटल हमारे पास कितने आए? 62 सबनेट्स. ठीक है, 62 सबनेट्स. 2 क्यों माइनस करते हैं जरा कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपको नहीं पता. ओके, आई होप आप सबको पता है. आई जस्ट वांटेड टू क्लियर फ्रॉम माय एंड. ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट. अब देखो हमारे पास 16 बिट्स थे, उसमें से 6 जो है होस्ट वाली ने लिए, 16 वाली सबनेट के थे. ठीक है, तो रिमेनिंग कितने रहे? 10. ठीक है,
तो होस्ट आईडी में कितने निकालेंगे 2 raised to the power 10 सेम -2 करेंगे 2 raised to the power 10 is how much 1024 -2 this is 1022 hosts so which one is matching ऑप्शन नंबर ए इज मैचिंग। देखो अगर आपको होस्टिंग या इस टाइप के क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है देन प्लीज लेट मी नो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे होते हैं ना तो आई वुड क्योंकि मुझे वो क्वेश्चन है वो बहुत लेस टाइम में करना होता है अदरवाइज वीडियो है ना जो वो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट आई जस्ट सॉल्विंग इट राइट। तो अगर कोई भी डाउट है इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि कमेंट में जरूर बताना ओके। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 79 okay simple question from computer architecture statement number 1 is CISC complex instruction set question number 79 given below are two statements statement number 1 is CISC computer have a लार्ज नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड्स बिल्कुल ये लार्ज है अगर कॉम्प्लेक्स जिसके नाम में कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट है ठीक है दिस इज ट्रू एंड इन रिस्क रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट मशीन्स एक्सेस इज लिमिटेड टू लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन लिमिटेड है बिल्कुल देखो रिड्यूस्ड टू लिमिटेड है ये बोथ आर ट्रू तो बी इज ट्रू और ये भी रेपिटेशन में क्वेश्चन आ रहा है ठीक है सिंपल वन। Question number 80 from computer networks again, but simple theory based question. A message is encrypted using public key cryptography to send a message from sender to receiver. Which of the following statement is true? देखो यहाँ पे public key बोला गया है तो public key मतलब जब हम two keys का use करते हैं one is private and other one is public right? तो रिसीवर और इसका क्या है कह रहा है टू सेंड एनक्रिप्टेड डेटा टू समवन यू मस्ट एनक्रिप्ट द डेटा विद दैट पर्सन्स पब्लिक की ठीक है एंड द पब्लिक सॉरी क्वेश्चन नंबर 80 अ मैसेज इज एनक्रिप्टेड using public key cryptography to send the message from sender to receiver which one of the following statement is true कौन सी स्टेटमेंट ट्रू रहेगी रिसीवर डिक्रिप्ट यूजिंग हिज ऑन पब्लिक की receiver decrypt using sender's public key and C is sender encrypt using his own public key or sender encrypt using receiver's public key. So option number D is correct. Sender कैसे encrypt करेगा receiver की public key के साथ ओके और अगर क्वेश्चन पूछा होता कि पर्सन है जो वो डिक्रिप्ट कैसे करेगा वो करेगा the person receiving the data decrypt it with the corresponding private key okay private key के साथ करेगा just because public key there are two keys one is public and other one is private ठीक है public key है जो वो सबको अनाउंस कर दी जाती है and private key क्या है वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए खुद के पास ही रखी जाती है ठीक है तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं and we'll got confused in that so we need to be careful while solving this type of questions. Let's move to question number 81. Question number 81. A digital computer has a common bus system for 8 registers, 16 bits each. ठीक है 8 registers हैं जो 16 bits ले रही हैं. How many multiplexers are required to implement a common bus and what size of multiplexer is required? ठीक है पहले हमने बताना है कि कितने multiplexer चाहिए उनका साइज क्या रहने वाला है. देखो I'll write it here. Size of multiplexer है ना size of मक्स लिख देती हूँ मैं शॉर्ट में मल्टीप्लेक्सर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने रजिस्टर्स हैं मेरे पास नंबर ऑफ रजिस्टर्स मल्टीप्लाइड बाय 1 ठीक है इंटू 1 तो कितने रजिस्टर्स गिवन है हमारे पास 8 रजिस्टर तो 8 इंटू 1 साइज का हमें मल्टीप्लेक्सर चाहिए ठीक है अब नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं कितने नंबर में चाहिए ठीक है नंबर ऑफ multiplexers that is equal to the number of bits in each register that is number of bits in each register from the given data is present right कितनी बिट्स हैं हमारे पास 16 बिट्स ठीक है तो पहले क्या पूछा गया
हाउ मेनी मल्टीप्लेक्सेस, कितने मल्टीप्लेक्सेस चाहिए हमें, 16 चाहिए, उनका साइज क्या है 8:1, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82, which of the following statements are true? From again computer networks, X.25 is connection oriented network, क्या ये connection oriented network है? Yeah, this is a connected, yes, this is a absolutely a connection oriented service जो support करता है virtual circuit को as well as the permanent circuits. So this one is definitely true. ठीक है, B क्या बोल रहा है, X.25 doesn't support switched virtual circuits. No, this one is not true. Frame relay service provide acknowledgements, and D क्या बोल रहा है, frame relay services provide detection of transmission error, right? So yes, this one is true. ये provide करता है transmissions error detection में. So A is true. Detection of transmission error using a frame check sequence called as FCS is one of the core functionality of frame relay. Okay, so ये services को provide नहीं, acknowledgement को provide नहीं करता, तो A is the correct answer. Question number 83, match list 1 with list 2. List 1 में हमारे पास कुछ gates given है and list 2 में कह रहा है कि वो इसके हेल्प से हम उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है जी, जैसे कि इट सेड दैट ऑड फंक्शन, राइट, ऑड फंक्शन के लिए व्हाट वी डू, वी विल गो फॉर एक्सऑर गेट, है ना, हाउ, आई लेट यू एक्सप्लेन। अब हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल गेट। देखो यूनिवर्सल गेट क्या है, यूनिवर्सल गेट वो है जिससे हम सारे के सारे बुलियन फंक्शंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर गेट। एग्जाम्पल क्या रहता है, नैंड और नॉर गेट, ठीक है ना, यूनिवर्सल गेट के एग्जाम्पल वी ऑल नो, नैंड और नॉर आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट। तो बी का क्या है 1, यहाँ से सॉल्व हो गया, ठीक है, यू कैन चेक। और ये क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा गया है, नैंड एंड नॉर आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट, ठीक है। 2421 क्या है हमारे पास, 2421 इज कम्स अंडर सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड एंड बफर इज एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। ऑड फंक्शन क्या रहेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक्सॉर की फंक्शनिंग को देखें, ठीक है, अगर मैंने किया 1 एक्सॉर 1 देन व्हाट आई गेट 0। अगर मैंने 0 एक्सॉर 1 किया तो व्हाट आई गेट 1। दिस मीन्स कि अगर मेरे पास ऑड नंबर्स ऑफ वंस या जीरोस हैं देन आई विल गेट द सेम थिंग, ठीक है, आई विल गेट 1, ठीक है। अगर मेरे पास इवन हो तो मुझे 0 ही मिलने वाला है, क्यों, क्योंकि XOR will work if both the bits are different in that case. Okay, let's move to question number 84. Question number 84, Telnet, FTP, HTTP are application layer protocols. Yes, they are application layer protocols. Statement number 2, the Iridium project was planned to launch 66 low-bit satellites. Yeah, this is also true. Question number 84, given below are two statements. Statement number 1 is Telnet. Question number 84, given below are two statements. Question from computer networks. Statement number 1, Telnet, FTP, HTTP are application layer protocols. Yes, they are. No doubt in this. So this is 100% true. And statement number 2, the Iridium project was planned to launch 66 low-bit satellite. यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, यहाँ पे एटलीस्ट 66 low-bit satellites आना चाहिए था, ओके, जो कि 6 पोलर ऑर्बिट्स कंटेन करते हैं, ठीक है, 11 satellites each, ओके, फॉर सीमलेस कवरेज के लिए। तो एटलीस्ट वर्ड के कारण वी can say that it will be more than 66. तो A is true but statement 2 is false. Actually जो Iridium का consolidation of 66 low bit orbit satellites offer करता है complete global coverage, जिसमें data, voice, SMS and optimal reliability की services दी जाती हैं जहां भी आप जा रहे हैं, ओके। LEO के अंदर था, that is low earth orbiting, okay, low earth orbiting satellites. So statement number D
Okay, let's move to 85. The cache coherence problem can be solved by having multi-port memory. No. Allow only non-shared data to be stored in cache. Yeah, this should be there. This is true. Use a Snoopy cache controller. Snoopy cache controller. Yes. Using memory interleaving. No. So both B and C. That is option number B. Okay. 86 question number. Let Gx be a generator polynomial used for CRC checking from computer networks. The condition that it should be satisfied by the Gx to catch all the errors satisfying an odd number of inverted bit is, it is definitely x plus 1 होना चाहिए फैक्टर Gx का, राइट. ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है. आई गेस इट इज रिपीटेड अगेन. ठीक है, गेट में तो आ ही चुका है बट नेट में भी आ चुका है. वो 2-3 लाइनर्स वाले क्वेश्चन में आया था. ठीक है, आई गेस 2017 में मे बी. ओके, let's move to question number 87. Which of the following is not an example of pseudo instruction? Pseudo instruction का example क्या नहीं है? तो DEC, END, HLT या फिर ORG. ओके, देखो DEC for the decrement operand. ORG क्या होता है? जो सेट करता है current location counter value just like origin, and we have end. एंड क्या करता है कि एंड ऑफ द असेंबली फंक्शन. ठीक है, एंड होल्ट क्या है? होल्ट इज एन असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन विच होल्ट द सीपीयू अंटिल द नेक्स्ट एक्सटर्नल इंटरप्ट इज फायर्ड. तो दिस कम्स अंडर असेंबली लैंग्वेज और ये सूडो का एग्जाम्पल नहीं है. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट इन this. Question number 88. Let X operator be a semigroup. Furthermore, for every A and B index, if A is not equal to B, then A operator B is not equal to B operator A. Okay? अगर वो दोनों equal नहीं है तो ये भी नहीं होगा. Based on the defined semigroup, choose the correct equalities from the options given below. Okay, A क्या बोल रहा है? For every A in X, A into A that is equal to A. For every A B in X, A into B into A that is equal to A. For every A B C in X, then A operator B operator C that is equal to A into C. Now check out this solution. Now what is trying to say? Let A operator A that is equal to B. Let us assume that. Now A into A that is into, let A operator A that is equal to B. ओके, लेट अस अज्यूम, हमने ये अज्यूम किया. अब हमने क्या किया कि दिस वन, ठीक है, दिस वन इनटू ए दैट इज इक्वल टू क्यू. अब हमने इसको बोला था कि ए ऑपरेटर ए दैट इज इक्वल टू बी, तो वी हैव रिप्लेस दिस वन विद बी ऑपरेटर ए. क्यों? सिंस ए स्टार्ट इज अ सेमी ग्रुप एंड दिस इज क्लोज अंडर एसोसिएटिविटी के अंदर क्लोज है, तो वी कैन से दैट एसोसिएटिविटी क्या होगा? वही नो ना, एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है कि अगर मेरे पास ए इंटू बी इंटू C like this है, that this is also equal to A into this B into C. मतलब A into B को पहले किया फिर मल्टीप्लाई बाद में C से किया. राइट, सेम यहाँ पे आया हमारे पास कि A operator B is equal to B operator A, which is possible if and only if A is equal to B. Hence we proved this is equal to this. ठीक है, तो A क्या हो गया हमारा? true. Now B में क्या बोल रहा है? A operator B operator A that is equal to C. ओके, दैट इज इक्वल टू सी. लेट माना हमने, ठीक है, कि इसको सी के इक्विवेलेंट किया, ये उठाया, यहाँ पे ए की जगह में सी ले आई, राइट, लेट करके लिया. अब इसको हम रिप्लेस करेंगे, दिस थिंग्स विल बी रिप्लेस्ड बाय सी इनटू सी ऑपरेटर ए. नाउ ए बी ए दैट इज इक्वल टू सी ऑपरेटर ए. तो सी ऑपरेटर ए इज इक्वल टू व्हाट? ए इटसेल्फ, राइट, ए इटसेल्फ. क्यों? क्योंकि हमने ऊपर प्रूफ किया था ए ऑपरेटर बी दैट इज इक्वल टू बी ऑपरेटर ए, राइट. तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये जो टर्म है, ठीक है, इसको हमने सी से क्या किया? रिप्लेस कर दिया. सिमिलरली अब सेम ब्रैकेट का ही चेंज किया हमने. अब हमने ए इंटू बी
A operator B operator A, that is equal to A operator C. Okay, that A operator C मतलब A into B associative A into B and B into A both are equal, right? तो यहाँ पे हम सिमिलरली वही प्रूव कर रहे हैं. तो पहले उसने क्या बोला A into C, बाद में हमने क्या किया C into A. क्लियर? तो B भी क्या है ट्रू है. अब C को देखो A into B into C that is equal to D. ठीक है, A into B into C that is equal to D. लेट करा हमने. अब A into B into C. Okay, C. This is replaced by D. D into C. D into C. Right? अब यहाँ पे हमने क्या किया? This is equal to D into C and D into C is equal to C. D. तो सेम वैसे ही यहाँ पे आपने क्या निकाला है D. सेम ऑपोजिट वे में भी करोगे. ठीक है, ब्रैकेट को अलग से इवैल्यूएट करना है. ओके ओके, तो द होल कंसेप्ट विल रिमेन द सेम. ठीक है, तो ये क्या है, ये तीनों ही एग्जिस्ट करता है. दैट इज ए बी सी. ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर ट्रू. ओके, if you have any doubt now, then please comment below, just because I felt that we hadn't cleared this concept with the help of this question, because it will be a very time taken process, right? So if you have any doubt now, please comment पे जरूर बताइएगा. We'll make a separate video on how to solve group, semi-group, monoid, like these kind of things. Okay, thank you so much. A company stored products in a warehouse. Storage bin in the warehouse are specified by their aisles, location in the aisles and shelf. There are 50 aisles. 50 aisles and 85 horizontal location in each aisles and 5 shelves throughout the warehouse. What is the least number of product a company can have so that at least 2 product must be stored in the same bin? तो एटलीस्ट 2 का मतलब क्या रहेगा हमारे पास. ठीक है, यहाँ पे हमने लॉजिक लगाना है थोड़ा सा. देखो देयर आर 50. ओके, मल्टीप्लाइड बाय 85 लोकेशंस मल्टीप्लाइड बाय 5 शेल्फ्स. ठीक है, इतनी हमारे पास लोकेशंस रहने वाली हैं. अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 21250. ओके, दिस शुड बी द लोकेशंस. अब वो बोल रहा है कि क्या लीस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स रहे हैं. इतनी तो लोकेशंस हैं. लीस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या रहे कि 2 प्रोडक्ट्स है ना, वो सेम बिन में आनी चाहिए. तो 2 प्रोडक्ट इतनी लोकेशंस हैं, एक ऐड करो तो ऑब्वियसली क्या होगा, 2 प्रोडक्ट सेम बिन में आएंगी. राइट? फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास 2 बिन्स हैं. अगर इफ यू आर नॉट गेटिंग, आई टेक सिंपल एग्जाम्पल. 2 बिन्स हैं, मैंने बोला मेरे पास 3 चॉकलेट्स होनी चाहिए ताकि एक बिन में 2 चॉकलेट्स आएंगी. तो मैंने क्या किया 2 + 1 सेम ऐसी इतनी लोकेशन थी +1 की इतनी डिफरेंट लोकेशंस होनी चाहिए ताकि 2 जो है पर्टिकुलर एटलीस्ट 2 प्रोडक्ट्स मस्ट बी स्टोर्ड इन द सेम बिन. ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. Question number 19. Let us assume a person climbing the stairs can take 1 stair or 2 stairs at a time. How many ways can this person climb a flight of 8 stairs? ये क्वेश्चन ना इंटरव्यू में पूछे जाते हैं. ठीक है, वी नो कि हाँ कॉम्बिनेशन परमुटेशन वाले क्वेश्चंस बेसिकली कम्स फ्रॉम द इंटरव्यू एंड एनटीए हैज जस्ट ट्राई टू पेस्ट फ्रॉम, मतलब कॉपी पेस्ट वाला ही काम रहता है. ठीक है, ओके, तो हमारे पास क्या बोल रहा है कि 8 स्टेयर्स हैं, ऐसे करके कुछ 8 स्टेयर्स हैं. ठीक है, दिस इज नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ओके, तो कितने वेज से वो पर्सन क्लाइंब कर सकता है. और इसने बोला कि एक टाइम पे या तो हम एक स्टेयर मतलब एक स्टेप आप ऊपर चढ़ोगे या फिर आप 2 पे चढ़ सकते हो. ठीक है, तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है. क्या करना है हमने, यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ 1 स्टेप्स. ओके, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ 2 स्टेप्स कि वो जब स्टेयर चढ़ रहा है तो कितने 2 स्टेप्स ले रहा है. ठीक है, और यहाँ लिखो नंबर ऑफ वेज. डन.
ओके, अगर मैंने सारे एक एक करके ही सीढ़ी चढ़ ली, ठीक है, मतलब मैंने एक एक स्टेप से ही लिया, नॉर्मली मैं एक एक ही लेती हूँ, राइट। ओके, अगर हमने एक एक से लिया तो टोटल 8 स्टेयर्स 1 1 1 करके मैंने चढ़ लिए, तो 2 स्टेप्स लेने की मुझे नीड ही नहीं पड़ी, 0। तो कितने नंबर ऑफ वेज हुए? 1। ठीक है, सिंपल। आई जस्ट मैंने मैंने क्या किया, पहले मैं 1 पे गई, देन आई गो टू 2, देन 3, मतलब एक वेज इस तरह से मैंने क्या किया, सीढ़ी को क्लाइम कर लिया, ठीक है, स्टेयर्स को। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला कि 6 मैंने लिए 1 स्टेप्स, ठीक है, जैसे मैं 6 तक चली, फिर मैंने क्या किया, एक साथ ही मैंने 2 स्टेप्स लिए और मैं पहुंच गई 8, मतलब मैंने क्लाइम कर ली प्रॉपर। तो नंबर ऑफ 2 स्टेप्स क्या हो जाएंगे मेरे, ठीक है, मतलब एक स्टेप रहेगा जो मैंने 2 स्टेप्स का लिया है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने रहेंगे, टोटल कितने हुए, 6 + 1 इज 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कॉमन हमारे पास 6 फैक्टोरियल, ठीक है, कि 6 स्टेप्स हैं तो वो रेपिटेशन में तुम्हारे पास क्या है, 7 वेज से मैं ऐसा कर सकती हूँ। 7 वेज कैसे, लेट अस अज्यूम कि मैंने एक स्टेप लिया, फिर मैंने 2 और 3 को डबल में कन्वर्ट किया, फिर 4 5 6 7 8 मैं साइमल्टेनियसली चढ़ती गई। अब मैंने यहाँ पे इस पे किया था, अब मैं यहाँ पे भी कर सकती हूँ, 3 पे भी मैं 2 स्टेप्स ले सकती हूँ, 3 और 4 कवर हो जाएंगे, फिर 5 6 पे भी कर सकती हूँ, 7 8 पे भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो ऐसा करके मेरे पास टोटल 7 तरीके से मैं क्लाइम कर सकती हूँ, जब मैंने सिर्फ एक बार ही 2 स्टेप्स को कवर करना है। ओके, अगर मैं 2 स्टेप्स को 2 बार कवर करूँ तो 1 स्टेप्स मुझे 4 बार चढ़ने पड़ेंगे, है ना, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास कितने टोटल वेज रहेंगे, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, टोटल 15 वेज है कि जब मैं 2 स्टेप्स करके चढ़ रही हूँ। कैसे, सपोज 2 स्टेप्स लिए मैंने यहाँ पे, एंड फिर 2 स्टेप्स मैंने यहाँ पे, एंड फिर बाकी 4 जो स्टेप्स हैं वो मैंने कवर किए 1 1 स्टेप्स की हेल्प से, ठीक है। अब इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो पहले मैंने ये बोला, ये 2 भी हो सकते हैं, ठीक है, चॉइस की बात है, कोई से भी 2 हो सकते हैं, बाकी चलेंगे ऐसे। नाउ लेट अस अज्यूम कि अगर मैंने 3 स्टेप्स 2 के ले लिए तो मैं 2 चलूंगी 1 स्टेप्स, राइट, एंड बाय दिस वे आई विल गेट 5 factorial divided by 2 factorial and 3 factorial. This is equal to 10. Okay, next what happened is, अगर मैं सारे के सारे 2 स्टेप्स करके ही ऊपर चली गई तो कितने वे से मैं पहुंच जाऊंगी, तो स्टेप में मुझे 2 मतलब 1 1 स्टेयर करने की जरूरत ही नहीं है, देन 1 यहाँ पे एक वे रहेगा ऐसा जाने का, है ना। देखो ना, सिंपल, मैंने पहले 2 स्टेप्स लिए, फिर मैंने 2 स्टेप्स लिए, फिर मैंने 2 स्टेप्स लिए और फिर मैंने 2 स्टेप्स लिए, तो ऑब्वियसली 1 वे है ऐसा कन्वर्ट करने का। अब हमें टोटल कितने वेज है, जस्ट ऐड दैट 1 + 7 + 15 + 10 + 1, you are getting 5 + 1 6, 6 + 7 13, 13 + 1 is 14, this is equal to 34. So option number D is correct. 34 steps, 34 ways के साथ आप क्लाइम कर सकते हैं 8 स्टेयर्स को by taking either 1 step और 2 steps, right? Okay. नेक्स्ट टाइम स्टेयर चढ़ो ना, ध्यान देना कि कितने वे से कर सकते हैं उसको क्लाइंब, ओके, so that प्रैक्टिकल हो जाए इस क्वेश्चन का, ओके। Let's meet in the next video that will be for miscellaneous questions जो भी ये रह गए हैं। मुझे लगा था कि हम इसको कवर अप कर लेंगे, but the video बहुत लेंथी ऑलरेडी हो गई है। So if you like the video now, please take a moment to like, share and subscribe. It's because your like, share will motivate me to create this type of videos more. इतना तो बनता है और आप कर सकते हैं। Thank you so much for watching this video.